ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੂੰ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ फिर तुसी नहीं बचा सकते। हम्म। राहु क्या है? राहु का पेट नहीं है, हूँ राहु सिर है, तो हम्म। उसकी भूख ही नहीं मरती, उसको और पार्टनर चाहिए और पार्टनर चाहिए और पार्टनर चाहिए, उस कारण रिलेशन खराब हो रहे हैं। ओके तो राहु की रेमेडी करते रहो, रिलेशन कम खराब होंगे। ठीक है, आप बहुत लेट नाइट तक जागोगे, राहु का इन्फ्लुएंस आएगा। दूसरी प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਡੇ फोन। हम बिल्कुल बेड के सिराने फोन रख के सो रहे हैं, राहु का इन्फ्लुएंस आपके बेड पर आ रहा है, and that would always want to enhance the relationship, would want to add on the relationships। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने बेड के पिल्लो के साथ नहीं रखने हैं, अवॉइड करो, उससे रिलेशन खराब होगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप सही पहचाने, हम इस गांव के नहीं हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हम अपने गुरु से एस्ट्रोलॉजी सीख करके अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। लेडी बहुत खुश हुई, लेडी ने कहा शुक्र है भगवान ने मेरी सुनी, मैं तो चाहती थी किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलना, मेरी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करो। उन्होंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो लेडी ने कहा मेरा बेटा कहीं गया है, कोई भी एबीसी चीज अभी आप ले लो, वहां गया है, वहां वो कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया और वो वापस नहीं आ पाया। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, वो शब्द इस्तेमाल हुए हैं और वही आज की डेट में डिफरेंशिएशंस हैं। जो बैलगाड़ी होगी वो सस्ती होगी, जो घोड़ा गाड़ी होगी वो थोड़ी महंगी होगी। तो जिनके पास घोड़ा गाड़ियां शब्द वाला जो योग बनता है, दे माइट बी हैविंग लग्जरी कार्स और मोर ऑफ फोर व्हीलर्स। ओके और ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰਜੇ ਗੈਰੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਿਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਕਪੂਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਕਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਣੇ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਤੋੜਨੇ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 8ਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, 8th ਹਾਊਸ, ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੋਰਪੀਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक रेमेडी बता रहा हूँ, सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। हाँ, जिगरा स्ट्रॉन्ग चाहिए वै जे रेमेडी करनी है। अर्ली मॉर्निंग तुसी शमशान चले जाना,
ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਧਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਪੀਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੋਕੀ ਵਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਲੈਕ ਪਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਰੈਮੇਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। प्रकृति चाहती ਤੁਸੀਂ हस्पताल जाओ, चले जाओ, खुद सिविल हॉस्पिटल जाओ, वहां बैठो 10 मिनट, वहां खाना खाओ, घर वापस आ जाओ। प्रकृति चाहती है तुम जेल जाओ, जाओ किसी जेल में जाकर बैठो, वहां खाना खाओ, वापस आ जाओ। वो योग टला नहीं, तुम जेल पहुंचे पर अपनी मर्जी से पहुंचे। प्रकृति ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕ ਹੈ, शमशान जाके बैठना शुरू कर दे। तुम रोज शमशान जा रहे हो, अपनी मर्जी से शमशान जा रहे हो, तो तुम्हारी वो चीज घटित नहीं होती है। एक रेमेडी बताता हूँ, जिनके घर से बीमारी नहीं जा रही या जिनका बहुत ज्यादा पैसा हॉस्पिटल में लगता है, आप किसी हॉस्पिटल से पानी ले आओ, 2 लीटर की बोतल च पानी भर के ले आओ, उस पानी को घर आके बॉयल करके ठंडा कर लो। बॉयल करके ठंडा इसलिए करना कोई बैक्टीरिया ना बचे। उसके बाद उसकी बर्फ जमा लो। अब वो बर्फ बहुत सारी जम जाएगी, है ना, 5-6 ट्रेज उसमें आपकी आराम से जम जाएंगी। एक क्यूब उसमें से अपनी सब्जी में फेंक दिया करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਟਲਨੇ ਸਟਾर्ट हो जाएंगे। तो जो प्रकृति चाहती है करना वही है। हम प्रकृति से बड़े नहीं है। शमशान अगर वो ले जाना चाहती है तो आप शमशान जाओ। शमशान में वैसे हर किसी वास्ते रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि शमशान साधना इज अ टोटली डिफरेंट थ्योरी टू डिस्कस अबाउट। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड मैंने बता दिया है, वहां जाकर के झाड़ू लगाने से आपके रास्ते क्लियर होने स्टार्ट हो जाते। अच्छा, यूजली ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਮੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਤੂ ਦੀ ਅਫਲਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 7th ਹਾਊਸ ਲਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 7ਵਾਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੇਤੂ ਸਪਲਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਲਿਆਣਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਭਾਵ ਤੇ 7ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਤੂ ਦੀ ਅਫਲਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਈਜ਼ੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਸੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਓਕੇ, ਸਲੀਪ ਔਨ डिफरेंट बेड्स एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days a month। अच्छा, रिलेशन प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तुमने खुद ही स्प्लिट कर दिया तो वो प्रॉब्लम आनी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, ਸੈਮੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਉਹ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, 7th ਹਾਊਸ ਲਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 6, 8, 12 7th लॉर्ड विद राहु बैठा हुए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल राहु क्या है? राहु का पेट नहीं है, राहु सिर है, तो उसकी भूख ही नहीं मरती, उसको और पार्टनर चाहिए, और पार्टनर चाहिए, और पार्टनर चाहिए, उस कारण रिलेशंस खराब हो रहे हैं। ओके, तो राहु की रेमेडी करते रहो तो रिलेशन कम खराब होंगे। यानी कि सेपरेट सोना शुरू कर दो। वो केतु की रेमेडी है सर। वो केतु ते राहु की रेमेडी की रहेगी? राहु की रेमेडी ये रहेगी, जो भी कपल एक बेड पर सो रहा है, एक तो ट्राई करो कि लेट नाइट तक मत जागो। ओके,
ठीक है आप बहुत लेट नाइट तक जागोगे राहु का इन्फ्लुएंस आएगा दूजी प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਡੇ फोन हम बिल्कुल बेड के सिराने फोन रख के सो रहे हैं राहु का इन्फ्लुएंस आपके बेड पर आ रहा है एंड दैट वुड ऑलवेज वांट टू एनहांस द रिलेशनशिप वुड वांट टू ऐड ऑन द रिलेशनशिप्स तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने बेड के पिल्लो के साथ नहीं रखने हैं अवॉइड करो उससे रिलेशन खराब होता है ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਾਸ ਗਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਗਲਾਸ ਗਾਰਡ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪद्धति घटना जिस समय घटी उसका क्या संकेत है घटना कोई भी हो सकती है फोन टूटना हो सकती है फोन का चार्जर ना काम करना हो सकती है आप शूट कर रहे हो लाइट चली गई हो सकती है आपका मुझे फोन आया साथ ही मेरे को बैंक से फोन आ गया कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया है उसकी एक अलग साइंस हो सकती है घटना समय पद्धति घटना क्या घट रही है उससे प्रिडिक्शन देना बिना टेवा देखे आई डोंट नीड योर स्टार्स just by looking at the surroundings we can see what's going to happen in the future okay it is simply like okay प्रकृति संकेत देती है मैं आपको एग्जांपल देता हूं यदि आप कभी देखो कि चींटियां जो हैं वो अपने अंडे उठा करके पेड़ पर चढ़ रही हैं ये किस चीज का संकेत है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है ठीक है घटना हमारे आसपास घट रही है लेकिन हमारी सेंसेस उतनी एक्टिवेटेड नहीं है कि हम उन्हें देख सकें पुराने लोग आज भी देख लेते हैं जहां पर चीलें मंडरा रही हैं आप कह सकते हो वहां पर डेड बॉडी पड़ी है ट्रू ठीक है या चीलें एक एक्स्ट्रा हाइट पर चली जाएं तब भी आप कह सकते हो कि बारिश होने वाली है ठीक है या सांप जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को रख ले तो आप बता सकते हो कि ये सांप अब डसेगा ही इज कमिंग इन द एक्शन सो आपके आसपास की घटनाएं बता सकती हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है कांच टूटना शगुन होता है कि अपशगुन होता है अपशगुन होता है किसने कहा है पर लोग कहते हैं यूजुअली शीशा टूट गया अपशगुन है कांच टूटना एक्चुअली अच्छा संकेत है देयर इज समथिंग जो हो सकता था वो बहुत छोटे में टल गया अच्छा आपका फोन नीचे गिरा फोन भी टूट सकता था लेकिन ग्लास गार्ड टूटा कुछ छोटे में टल गया ठीक है 1000 ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते हैं जो बहुत छोटे में टल जाते हैं और यही है ना सर नजरिया है अगर तो आप नेगेटिव से नेगेटिव चीज को पॉजिटिव देखकर चलो कि चल यार सोखा छूट गए चल यार इजी हो गया तो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपके स्टार्स चेंज हो जाएंगे मैं समय घटना पद्धति के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी प्यारी स्टोरी है बहुत लोगों ने सुनी भी होगी क्योंकि ये बड़ी फेमस स्टोरी है बट स्टिल आई एम गोना टेल यू सो हुआ क्या था एक बार 3 एस्ट्रोलॉजर्स थे जिनका गुरु एक था वो उस गुरु से एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपने अपने गांव वापस जा रहे थे रास्ते में इन्हें बहुत प्यास लगी जी और ये इन्होंने देखा कि एक लेडी एक कुएं से पानी भर रही है तो ये उस लेडी के पास रुके और उसको कहा कि हमें थोड़ा पानी पिला दो उस लेडी ने कहा कि पानी तो मैं पिला देती हूँ पर तुम इस गांव के नहीं लगते तुम लोग कौन हो कहां से आए हो और आपके कपड़े भी देखकर लग रहा है कि तुम बिल्कुल सेम ही और स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने कहा हाँ आप सही पहचाने हम इस गांव के नहीं हैं हम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हम अपने गुरु से एस्ट्रोलॉजी सीख करके अपने अपने घर वापस जा रहे हैं लेडी बहुत खुश हुई लेडी ने कहा शुक्र है भगवान ने मेरी सुनी मैं तो चाहती थी किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलना मेरी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करो उन्होंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है तो लेडी ने कहा मेरा बेटा कहीं गया है कोई भी एबीसी चीज अभी आप ले लो वहां गया है वहां वो कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया और वो वापस नहीं आ पाया लेकिन अब खबर आई है कि उसको वहां से छुटकारा मिल गया है और वो घर आ जाएगा लेकिन इस बात को भी 15 दिन बीत गए मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया क्या मेरा बेटा घर वापस आएगा और ये बोलते बोलते उस लेडी के हाथों से जिस बाल्टी से वो पानी भर रही थी वो रस्सी टूटी और पानी ठा करके वापस कुएं में गिर गया ये घटना को देखकर पहले एस्ट्रोलॉजर ने कहा तेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा ओके
दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कुछ उपाय किए जा सकते हैं, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। तीसरे एस्ट्रोलॉजर ने कहा तेरा बेटा आज शाम तक घर आ जाएगा। ओके। अब ये बात आपके जैसा कोई तर्क वाला आदमी वहां बैठा होगा, सुन रहा होगा, उसने कहा यार ये कैसी बात हुई, एक ही गुरु से सीखे हुए शिष्य, तीनों की एक ही साइंस पढ़े हुए शिष्य, तीनों अलग जवाब दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि तुम अपनी अपनी वजह एक कागज पर लिखकर दे दो कि तुमने ये प्रेडिक्शंस क्यों दी, और आज रात तक रुक जाओ, आज रात यहीं विश्राम कर लो, कल यहां से चले जाना, अगर आज बेटा आ गया तो पता लग जाएगा, नहीं तो कल पर्चियां खोल लेंगे एंड वी विल सी के व्हाट्स हैपनिंग। जी उन्होंने अपनी अपनी वजह लिखकर दे दी। शाम को बेटा वापस आ गया, पर्चियां खोल ली गई। पहले स्टूडेंट ने लिखा था, जिसने कहा था कभी वापस नहीं आएगा, उसने कहा जैसे पानी मेरे पास आते आते रह गया, मैं प्यासा था और पानी मेरे पास आते आते रह गया, वो बेटा कभी वापस नहीं आएगा, इस माँ की प्यास भी नहीं बुझेगी। दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने लिखा था कि रस्सी ही तो है, दोबारा बांधी जा सकती है, कोई रेमेडी की जा सकती है, वो रस्सी दोबारा बांध करके पानी निकाला जा सकता है, ऐसे ही उसका बच्चा भी वापस आ सकता है, रेमेडी करके बच्चा वापस आ सकता है। तीसरे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, तीसरे ने लिखा था कि पानी का जो नेचुरल स्रोत है वो कुआं है, हम पानी को कुएं से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से मां का बच्चा पानी से अलग हो गया था और देखते देखते उसके सवाल करते करते वो पानी वापस अपने स्रोत से मिल गया जो उसकी नेचुरल प्लेस है। तो इसी तरह से बेटा जो है वो अपनी नेचुरल प्लेस पर माँ के पास वापस पहुंच जाएगा। अब इसमें गलती पहले और दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने क्या की, जो आप में से कई एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी प्यास को बीच में इन्वॉल्व कर दिया। उन्होंने देखा कि हमें प्यास लगी और हम तक पानी नहीं पहुंचा। तीसरे ने अपनी प्यास की बात नहीं की, तीसरे ने सिंपल बात की कि पानी को पानी से मिल गया, वही बहुत है, तो बच्चा वापस आ जाएगा। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप सवाल किस समय पूछ रहे हो, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट क्या है। जब मैं शमशान में बैठा होता हूं और मेरे क्लाइंट का कॉल आता है तो मेरा जवाब डिफरेंट होता है। जब मैं बैंक बैठा होता हूं और मेरे क्लाइंट का कॉल आता है, मेरा जवाब डिफरेंट होता है। तो समय क्या है, आसपास घटना क्या घट रही है, सिर्फ इसको देख करके प्रेडिक्शन दी जा सकती है। चाहे वो मोबाइल फोन का टूटना हो, चाहे वो शीशे का। मोबाइल फोन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बैठा था सर, मेरे क्लाइंट आए मेरे पास, आई डोंट मीट पीपल टू बी ऑनेस्ट, कोई बहुत क्लोज थे तो आए वो घर पे, तो हम बैठे, उन्होंने क्वेश्चन किया नहीं, अभी जस्ट वो क्वेश्चन करने वाले हैं। उन्होंने कहा सर मैं डेट ऑफ बर्थ लिखो, मैंने लिखनी जैसी थी, मेरा फोन बजा, ग्रैंड माँ दादी, अब ऑफ कोर्स दादी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स, तो मैंने दादी का कॉल उठा लिया। मैं कहा हाँ जी दादी बताओ। दादी ने ना कोई काम एबीसी देने को कहा था, वो काम नहीं बना और उन्होंने मेरे को वो इन्फॉर्म किया कि यार वो नहीं बनता पाया काम। मैं कहा कोई नहीं दादी इट्स फाइन, मैंने फोन काट दिया। मैं कहा हाँ जी बताओ जी डेट ऑफ बर्थ। दोबारा फोन आया दादी का, मैंने दोबारा फोन उठाया, मैंने कहा मैं एबीसी पर्सन के साथ बैठा हूँ, आई नीड सम टाइम, तो वेट करो। मैंने फोन काट दिया, दादी का फिर फोन आया, मैंने फोन दोबारा उठाया नहीं, मैंने दादी को मैसेज डाल दिया आई कॉल यू लेटर, और सामने जो मेरे बैठे थे उनको मैंने बोला तुम्हारा जो भी काम है नहीं होना। वो लेडी मेरे को गालियां निकाल के गई, कहती ये कैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने तो टेवा बिन देखा। कहते अभी तक मैंने आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया, टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया, और आप कह रहे हो कि आपका काम नहीं होना। वो लेडी मेरे से नाराज नरूज होके चली गई। 3 महीने बाद मेरे को फोन आया कि सर मैंने वीजा अप्लाई किया था, मेरा रिजेक्शन आ गया है, आपने कहा था नहीं होना, अब होगा कैसे। और उस समय जब दोबारा फोन आया, उस समय मैं बैंक बैठा था। नाउ बैंक इज समथिंग विच यू ट्रस्ट द मोस्ट, आप अपना पैसा आंखें बंद करके रखाते हो, है ना। तो मैंने उनको कहा टेंशन ना लो, तुम्हारा काम अब बन जाएगा। शी अप्लाइड अगेन एंड राइट नाउ शी इज इन यूएस ओनली। ग्रेट। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਵਰਡਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। देखो ब्लैक एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, काले कपड़े मंदिर पहन के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो
एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। आप हम्म। काली माता जी के टेंपल में देख लो, लोग हम्म। ब्लैक पहन के जाते हैं। काल भैरव जी के टेंपल में देख लो, लोग ब्लैक पहन के जाते हैं। क्या दिक्कत है? जो तांत्रिक होता है वो काले कपड़ों में अपना तंत्र करता है, तो क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक दैट ब्लैक हैज टू डू एनीथिंग विद इट। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इदाਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ नहीं ਨਹੀਂ मिथ ਕਿ है, मिथ है। ਮਿਥ ਹੈ। हाँ मिथ है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੀਨਸ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਗਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਅਰਿੰਗਸ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫॉर ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ, ਫॉर ਬਿਊਟੀ ਪਰਪਸ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? सब तो पहले आर्टिफिशियल कुछ नहीं पाना चाहिए। ओके डू नॉट वियर एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल। ओके ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ओके ਗੋਲਡ ਘੱਟ ਹੈ ਗੋਲਡ ਪਾਓ, ਚਾਂਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਪਾਓ, ਲੋਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਹਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘੜੀਆਂ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ। डू नॉट वेयर अ स्मार्ट वॉच। मैं ला दूँ? इट्स फाइन। मेरे को कभी स्मार्ट वॉच पहने नहीं देखा होगा, बहुत रेयर चांस होगा अगर मैंने कभी पहनी हो। जब पहनी होगी तब हमें इन चीजों का नहीं पता होगा। स्मार्ट वॉच क्या है? दैट्स राहु। अनदर थिंग, डू नॉट वेयर अ वॉच विद सेल। ओके सेल वाली घड़ी भी नहीं पहननी है। ओके घड़ी वो पहननी है जिसको ऊर्जा आपसे मिले। ओके अब आपसे ऊर्जा किस वॉच को मिलती है? मैकेनिकल वॉच को मिलती है या ऑटोमेटिक वॉच को मिलती है? सुइयां वाली कड़ी जिन्हों कहने हैं। हाँ, जब तक आपकी मूवमेंट से चार्ज होती है ना वो वॉच पहनो, क्योंकि आप अपना वक्त खुद बनाते हो। When you wear a watch with a cell, something else has to energize you. किसी और चीज को आपके वक्त को एनर्जाइज करना पड़ता है। ये क्या है? आप रोज रात को अपना वक्त चार्जिंग पे लगा देते हो। इसका ये प्रूफ है कि आपका वक्त बिना चार्जिंग के नहीं चल रहा और आप चार्ज नहीं कर रहे। आपने अपना वक्त राहु को दे दिया है, राइट? योर टाइम इज बीइंग चार्ज्ड बाय राहु, बट इफ यू कैन चार्ज योर टाइम बाय योरसेल्फ बाय वेयरिंग अ वॉच एंड इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू, और वही एनर्जी दैट्स गिविंग यू बैक। वॉच इज अ लिविंग थिंग। आई ऑलवेज से वॉच इज अ लिविंग थिंग बिकॉज टाइम इज अ लिविंग थिंग। वक्त जीवांत है, वक्त डेड नहीं है। और अगर आप अपने डेड वॉच घर पे रख रहे हो, विदाउट बंद घड़ियां, यस, डेड वॉच घर पे रख रहे हो, आपका टाइम डेड हो जाएगा। ओके दूसरी चीज, घड़ी यानी कि काल, काल मतलब चक्र, घड़ी गोल होनी चाहिए। कभी भी घड़ी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूं, टिक 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 टिक, ये वाली घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टिक में पॉज आ जाता है। घड़ी होनी चाहिए जापानीज मूवमेंट की, जो लगातार चलती रहे। आपका वक्त रुके क्यों? तुम्हें वक्त क्यों रोकना है? तो घड़ियां जो हैं वो चलती रहें, वही सबसे बेस्ट है। और वॉच के ऊपर तो इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं ना सर। वॉच और ब्रांड, कौन से ब्रांड की वॉच पहननी चाहिए? आप ओमेगा की वॉच पहन लो। ओमेगा की वॉच का जो सिंबल है वो राहु का सिंबल है, उसमें ईगो आ जाएगी। ओके आप रोलेक्स की वॉच पहन लो। रोलेक्स की वॉच का जो सिंबल है वो क्राउन है। Crown is something hard to achieve, yes. and Rolex is something hard to achieve. And by wearing a Rolex, you feel like you have accomplished something. Yes. आप में ऑटोमेटिकली लियो के ट्रेड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ वॉच ਜਿਹੜੀ ऑटोमेटिक होवे वो पावे। और गोल्डन डायल की वॉच लगाना सबके लिए अच्छा होता है। ओके अवॉइड करो ब्लैक वॉच, अवॉइड करो सिल्वर वॉच। गोल्डन वॉच सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और आपने जीन्स की बात की, जीन फटियां कटियां जीना नहीं पानी है। बहुत लोग फटियां कटियां जीना पाते हैं, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। वीनस इज बीइंग टॉर्न, बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो उससे बड़े सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग शुक्र ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੀकोड ਕਰ ਲੈਣਗੇ। दैट्स नॉट समथिंग वी शुड बी टॉकिंग ऑन द कैमरा, बट या, वीनस इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अनदर fashion accessory is a tattoo. Every single person wants to have a tattoo or have a tattoo. Even I have a lot of tattoos. Maybe you also have some tattoo. ठीक है? Tattoo क्या है? Tattoo is Ketu. Whenever you get a tattoo, you activate Ketu in your life. Okay. What is Ketu? Tattoo का लोग, आप नोटिस किया होगा, बहुत spiritual लोग tattoos बनाते हैं. You know, hippie people who are on their spiritual journey, right, you know, living in the mountains, they have a lot of tattoos. Why? They activated the Ketu.
ओके उनकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो गई। पर ऐसे ही टैटू नहीं कराना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है और आपने एक अम्ब्रेला का टैटू करा लिया, तो आपने ज्येष्ठा एक्टिवेट कर लिया, आपकी लाइफ स्पॉइल होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टैटू शुड बी गाइडेड। यस, आई ऑलवेज गिव द पर्टिकुलर टैटू कंसल्टेशन। मेरे Okay. पास बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ गाइडेड टैटू बनवाना चाहते हैं कि टैटू कहाँ हो, किस साइज का हो और क्या हो। ओके क्योंकि जो भी आप टैटू बनाते हो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਪਰਫਿਊਮਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ Very good ਅਲਮੀਰਾ question. ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਪਰਫਿਊਮਸ, ਲੋਟ ਆਫ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। सर, Right. परफ्यूम और नेचुरल स्प्रे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम्म You should be wearing the natural sprays rather than the chemical infused perfumes. ओके ठीक है। नेचुरल स्प्रेज जो होते हैं ना, वो नेचुरल चीजों से बनते हैं, दूसरा केमिकल से बनता है। बेसिक साइंस है, डिफरेंस होएगा। नेचुरल स्प्रे कब, कहां और कैसे लगाएं? नंबर 1, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਯੈਸ ਵਾਲਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਵਾਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੁੱਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ Yes. ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਵਾਈਫਸ, फीमेल्स इन द हाउस आर रिलेटेड टू वीनस, एंड पर्स भी वीनस है, आपकी टी शर्ट शर्ट भी वीनस है, रुमाल भी वीनस है, और आपका जो परफ्यूम है वो भी वीनस है। सो इफ यू गिफ्ट योर वीनस, व्हाट आर यू ऑफरिंग? बट ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हाँ, पैसे ले लो, which is पैसे ले okay. लो, which is दैट्स अ सेल, दैट्स सेलिंग एंड परचेजिंग। वो एनर्जी एक्सचेंज है, वो एक डिफरेंट चीज है। परफ्यूम ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल स्प्रे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। Okay. It could bring a lot of luxuries to your life and a lot of happiness, girlfriends and all those things which you truly need in your life. ये जो पार्ट है आपके हाथ का, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ये जो पार्ट है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ चाहते। मैं भी लगा लेना। नहीं, ये जो आपका तो काम ही सर शुक्र का है ना, तो ये जो पार्ट है, यहाँ पर आपको 2 स्प्रे परफ्यूम के करने हैं और उसको इस तरह से रब करना है, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। या लाइक दिस। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इतना, यस, ओके। ये इसको इस तरह से रब करना है, और कहीं भी जो है परफ्यूम ना लगे, सिर्फ यहाँ पर ਆਹ परफ्यूम ਵਾਲੇ लगे। ਹਿੱਸੇ ਚ। हाँ। ओके। और सिर्फ यहाँ पर परफ्यूम लगाने से आप अपने वीनस को अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरा वीनस भी होगा, वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो ਤੇ जाएगा। ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। नहीं, यहाँ तो लगाओ ही लगाओ, बाकी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ normal ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ which is good thing. या collection of perfumes is best, collection of clothes is best, but remember, do not donate your clothes to just anybody. आपके पहने हुए कपड़े की इतनी वैल्यू है ना सर, आपका पहना हुआ कपड़ा निकाल के आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ਅੱਛਾ। That's a black magic and all those things. We'll be discussing that in some session. ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦਈਏ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ, सेल भी नहीं करना है। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 चीजें कर सकते हो। अगर आपको सेल भी करने हैं या डोनेट भी करने हैं, मैं रेमेडी बता देता हूँ। पहने हुए कपड़े को किस तरह से डिस्कार्ड करें। उस कपड़े को फिटकरी और नमक वाले पानी में 1 रात डिबो कर रखो। उसके बाद आप उसको डोनेट भी कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो। उससे जो आपकी पर्सनल एनर्जीज का कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये बहुत लोगों के काम की चीज है कि इफ यू आर गोना डोनेट योर क्लोथ्स, हाउ यू शुड डू इट, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which is very important thing I guess, because ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਕਲਸ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ? ਔਰ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ 2 ਵੀਲਰਸ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ 4 ਵੀਲਰਸ। ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? सर, again, vehicle is the Venus. Vehicle is luxury. Venus is luxury. Vehicle is transportation. Venus is transportation. Remember, अगर आप अपने व्हीकल को गंदा रख रहे हो, आपका Venus खराब हो रहा है। ओके। लोगों के घर व्हीकल पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं। That's a bad thing to happen. अपने कार को फ्राइडे खुद वॉश करो, अगर कर सकते हो। खुद अपनी कार को फ्राइडे वॉश करो, पॉलिश करो, उन्हें सजाओ। Your Venus will improve. You will see luxuries coming. You will see money coming into your life. Another thing you asked कि व्हीकल का एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना है। सर, किसी ग्रंथ में किसी जगह पर कार शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, ट्रेन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, वो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और वही आज की डेट में डिफरेंशिएशंस हैं। जो बैलगाड़ी होगी वो सस्ती होगी,
जो घोड़ा गाड़ी होगी वो थोड़ी महंगी होगी। तो हम्म। जिनके पास घोड़ा गाड़ियां शब्द वाला जो योग बनता है, दे माइट बी हैविंग लग्जरी कार्स और मोर ऑफ 4 व्हीलर्स। ओके। और जिनका वो बैलगाड़ी वाला योग बनता है, उनका जो है वो छोटे व्हीकल्स जो है वो हो सकता है। तो शब्दों की हेर फेर है, क्योंकि वी आर लिविंग इन कलयुग एंड दीज थिंग्स वर रिटन बैक इन टाइम। तो वो डिफरेंस बहुत आ गया है। ਸਕ੍ਰੈਚਡ व्हीकल का क्या मतलब है ये भी बता देता हूं। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ व्हीकल बार-बार ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਤੂ ਹੋਏਗਾ। ओके। ठीक है, और उस स्क्रैच को रखो, ओके। बार बार रिपेयर मत कराओ। अगर वो स्क्रैच पड़ रहा है ना, लेट इट बी देयर, ओके, डोंट रिमूव इट। ओके। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ क्वेश्चन होएगा, फर्स्ट हैंड व्हीकल लेना चाहिए कि सेकंड हैंड व्हीकल लेना चाहिए। जिनका वीनस नीच का है उनको सेकंड हैंड व्हीकल ज्यादा सूट करता है रादर देन हैविंग अ फर्स्ट हैंड व्हीकल। और जिनका शुक्र उच्च का है या शुक्र अच्छी स्थिति में है, उनको फर्स्ट हैंड व्हीकल जो है ले लेना चाहिए।